Good morning students, this is science video. Today we are starting with the new topic, that is the structure of an egg. Here you will find out how the egg is made, means how they have outer shell, what is it made of, how it is having albumin and what is it made of, and yolk. Clear? So in this you will find out the life cycle of a hen, how the life goes on with the hen, and how it lay egg, how the bird or the baby form inside the egg, and how it becomes an adult. So the life cycle of the hen will be understood by this topic, and it is on page number 39 and 40. So let's begin with the explanation. Structure of an egg on page number 39. So students, this is page number 39. As you can see, the topic is given birds. So bird lays egg in their nest to reproduce. As you all know that bird are laying eggs to reproduce, right? They are not giving birth to their young ones. So there is two form of reproduction, that is laying eggs and giving birth to their young ones. So bird is in the category of laying eggs. They do not produce or they do not give birth to their young ones. Clear? So make sure that bird only lays egg. Now I have told you that in the hen's egg, it has yolk, it has outer shell, it has albumin, right? Membrane is a thin layer or a plastic sheet. Whenever you boil the egg, the eggshell comes out of it, right? So with the eggshell, it has a thin film of plastic that is known as membrane. Is it clear? I will send you the picture if it is possible. I will send you in the class, right? So you can see that how membrane look like inside the egg, right? So let's begin with the structure of an egg. Now you understood what are all the parts of the egg. Now you have to understand how it is made up of and what all things are needed to make the yolk, to make the eggshell and the albumin, right? So the eggs of all the birds have the same structure. You all know that egg is a kind of oval shape kind of thing, and it has the different sizes, it has different color, and it has different weight, but all eggs are of the bird have same structure, means they are in oval shape. No one is having square shape or any other triangle shape, right? They all are having oval shape of eggs, right? The outermost part of the egg is hard shell. You all know that it has the outer layer which is removed after boiling, right? So that is known as hard shell. वो हार्ड होता है, शेल जो है वो हार्ड होता है, इस वजह से बॉयल जब करते हैं तो वो अपने आप क्रैक हो जाता है, नहीं तो हम उसको निकाल देते हैं, राइट? A thin membrane is present inside it. After peeling the egg, whenever you boil the egg, you peel that outer shell, right? So in the outer shell, it is sticked with that plastic film that is known as membrane. Clear? So the middle part of the yellow is called yolk. You all know that yellow one is known as yolk, right? So the yellow thing, whenever you peel the egg, you cut the egg and you see that yellow part, right? A ball type of structure, that is known as yolk. It is rich in fat, proteins, vitamins and minerals. You all know that it is rich in fats, proteins, vitamins and minerals. Yolk provides nutrition to embryo as it develops. Now the thing is that yolk is the food of a baby. Embryo is a underdeveloped baby. अभी वो बेबी डेवलप नहीं हुआ है, उसको हम एम्ब्रियो बोल देते हैं, ठीक है? जैसे ही वो डेवलप हो जाता है तो उसको चिक बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन अभी वो प्रोसेस में है डेवलपमेंट के, तो उसके लिए एक नाम रखा गया है, क्या? एम्ब्रियो. क्या रखा गया है? एम्ब्रियो. सो योक प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो एज इट डेवलप्स. योक एक खाना है उस छोटे से बच्चे का, जिसमें वो अंडे के अंदर ही बच्चा होगा ना, समझ रहे हो? जब भी बच्चा अंदर होता है, जो भी छोटा सा ही होता है, एक डॉट के जितना,
ठीक है। वो एम्ब्रियो धीरे धीरे बढ़ता है, ग्रोथ करता है, और फिर जैसे ही उसकी फुल ग्रोथ हो जाती है वो एग अपने आप क्रैक होता है और उसमें से बाहर आ जाता है। तो एग उस बच्चे को भी तो खाना चाहिए, तो उसको खाने कौन प्रोवाइड करता है? योक करता है। इज़ इट क्लियर? इसीलिए योक में सारे चीज़ें इसमें रिच होती हैं, इसमें फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं एंड मिनरल्स होते हैं। इज़ इट क्लियर? एम्ब्रियोस समझ गए होंगे जहाँ तक है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क लेटर। इनसाइड द योक इज़ द एम्ब्रियो विच डेवलप्स इनटू अ नेस्लिंग। नाउ योक के अंदर ही एम्ब्रियो होता है और उसी के अंदर ही वो अपना खाना खाता है और उसी के अंदर ग्रोथ होती है उसकी, ठीक है। नाउ योक इज सराउंडेड बाय अ ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड एल्ब्यूमिन। सो व्हेनेवर यू क्रैक दैट एग, है ना, अंडे को जब फोड़ते हो तो क्या मिलता है आपको? जेली लाइक सब्सटेंस मिलता है, एक स्टिकी सा सब्सटेंस मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? एल्ब्यूमिन बोलते हैं। वो अगर बॉयल कर देते हो तो वो वाइट पार्ट आता है आपका, ठीक है। वाइट पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एल्ब्यूमिन बोलते हैं। नाउ इट इज़ रिच इन प्रोटीन एंड प्रोटेक्ट्स द योक एंड एम्ब्रियो इन इट। ये एक आउटर लेयर है जो योक को तो बचाता ही है और योक के अंदर जो एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है उसको भी प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। सो एल्ब्यूमिन इज़ अ प्रोटेक्टिंग लेयर ऑफ योक। There is an air sac on the broad side of the egg for liquid part to expand and to contract. अब एक चिक अगर मान लीजिए एक छोटा सा चिक है इसके अंदर, तो वो धीरे धीरे उसकी मूवमेंट भी होगी। उसकी मूवमेंट होगी तो वो क्या करेगा? अपने आप को खोलना शुरू करेगा या फिर बंधना शुरू करेगा। तो वो क्या होता है? एयर सैक रखे जाते हैं, इसमें छोटे छोटे एयर सैक होते हैं। एयर सैक मतलब छोटे छोटे होल्स हैं। वो क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन को और एक्सपेंडेशन को वो क्या करते हैं? उसी को फ्लेक्सिबल करते हैं, ठीक है। एयर सैक का काम ये है। नाउ जितना भी लिक्विड पार्ट है वो एक्सपैंड होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसलिए वो उसी हिसाब से अपने आप को स्क्वीज़ कर लेते हैं। वंस द एग इज़ लेड, एग जैसे ही बाहर आता है, द बर्ड सिट ऑन देम टू कीप देम वार्म। आप लोगों ने देखा होगा कि हैन बार बार अपने एग के ऊपर बैठने जाती है। क्यों बैठती है वो? ताकि वो उसको गर्म कर सके। एक बॉडी में टेम्परेचर होता है, सो डेवलप करने के लिए बॉडी में जो भी टेम्परेचर होता है तो वो डेवलपमेंट के लिए ही उसको गर्म करना पड़ता है, ठीक है। तो जब तक उसको गर्म कंडीशन नहीं मिलेगा एग को, तब तक वो अंदर का जो एम्ब्रियो है वो डेवलप नहीं करेगा। तो उसको गर्म करने के लिए ही बार बार वो उसके ऊपर आकर बैठती है, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड इंक्यूबेशन। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इंक्यूबेशन बोला जाता है। कभी कभी सुना होगा कि बच्चे को इंक्यूबेटर में भी रखा जाता है। हॉस्पिटल में इंक्यूबेटर बोलते हैं, ठीक है। इंक्यूबेटर एक तरह की मशीन है जो वही टेम्परेचर देती है जो मदर की बॉडी का टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो मदर का बॉडी का टेम्परेचर अगर बच्चा बर्थ ले लिया है और वो इंक्यूबेटर पे है, तो इसका मतलब ये है कि वो वही कंडीशन को देख रहा है या फिर वही कंडीशन को वो फील कर पा रहा है जो वो मदर की बॉडी के अंदर कर रहा था, ठीक है। तो इस प्रोसेस को, अभी एनिमल्स की बात कर रहे हैं, तो एनिमल्स में क्या है कि हैन जब एग के ऊपर बैठती है बार बार आकर और उसको गर्म करने के लिए पर्पस से बैठती है, तो वो क्या कहलाता है? इंक्यूबेशन कहलाता है, ठीक है। द एग्स गो थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बिफोर द यंग वंस ब्रेक द एग फ्रॉम इनसाइड एंड कम आउट। अब एग ब्रेक कैसे होता है? अपने आप ही ब्रेक होता है, उसको कोई तोड़ता नहीं है, ठीक है। ये योग के अंदर क्या है? एम्ब्रियो है छोटा सा, ठीक है। एम्ब्रियो धीरे धीरे क्या करता है? ब्लड वेसल्स उसके अपने आप कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। अंडा अपने आप वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर उसके बाद एक्सपैंड होता है। फिर उसके बाद 12 दिन बाद क्या होते हैं? एम्ब्रियो की आँखें दिखने लगती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 18 में क्या होता है? विंग्स एंड फीट्स कैन बी सीन। उनके विंग्स और फीट दिखाई देने लगते हैं। और 21 डेज़ में एग अपने आप हैच होता है। हैच मतलब क्या है? अपने आप क्रैक होता है, ठीक है। जैसे ही फुली डेवलप हो जाता है चिक, तो वैसे ही वो एग क्रैक होता है और चिक बाहर आ जाता है, और फिर वो धीरे धीरे और डेवलपमेंट होता है तो वो प्रॉपर hen हो जाते हैं, ठीक है।
तो ये है पूरा प्रोसेस लाइफ साइकिल ऑफ अ हैन का, जो 21 डेज़ में ही वो पूरा एक यंग फॉर्म से अडल्ट फॉर्म में आने, मतलब चिक के तौर पे आ जाते हैं, ठीक है। द एग्स गोज थ्रू द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बिफोर द यंग वंस ब्रेक द एग फ्रॉम द इनसाइड एंड कम आउट, ठीक है। वो डिफरेंट स्टेजेस में ही अपने आप को देखते हैं अलग अलग दिनों में, 21 डेज़ में ही हैच आउट होता है। दिस इज़ कॉल्ड हैचिंग। इसको क्या बोलते हैं, जब एग अपने आप ब्रेक हो जाए और डेवलप हो जाए फुली बेबी, तो वो क्या कहलाता है, हैचिंग कहलाता है। सम बर्ड्स आर हैच विदाउट फेदर्स। कुछ बर्ड्स के जो बच्चे होते हैं वो विदाउट फेदर हैच करते हैं, मतलब उनके फेदर अभी नहीं आए, पंख नहीं आते हैं, इसीलिए उनको नेस्ट में रखा जाता है, ठीक है। जैसे ही वो डेवलप हो जाते हैं और उनके फेदर्स आने लगते हैं तभी वो उड़ना सीखते हैं, ठीक है। दे आर फेड बाय देयर पेरेंट्स एंड दे डेवलप फेदर आफ्टर फ्यू डेज। तो इसलिए देखा होगा नेस्ट में कि बच्चे काफ़ी दिन तक उसी नेस्ट में रहते हैं और उनको फीड कौन करता है, उनकी मदर फीड करती हैं, ठीक है, या फिर पेरेंट्स। स्पैरोज़ को ख़ास तौर पे देखा होगा आपके घरों में, अगर घोंसला बना है तो वो आपने देखा भी होगा कि उस नेस्ट के अंदर बच्चे बहुत दिनों तक रहते हैं और फिर उसके बाद सीखते हैं जब उनके फेदर्स आ जाते हैं कुछ दिनों बाद। सम बर्ड्स हैच आउट ऑफ द एग विद देयर फेदर्स। कुछ बर्ड फेदर्स के साथ ही हैच आउट होते हैं, मतलब उनके अंदर फेदर्स डेवलप हो चुके होते हैं, जैसे यहाँ पे लाइफ साइकिल ऑफ अ हैन का दिखा रखा है, ठीक है। तो लाइफ साइकिल ऑफ अ हैन सीधा समझ लीजिए, एग होता है, इसमें ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रास्ट होते हैं और एक्सपैंड होते हैं, और फिर 12 डेज़ के बाद उसकी आंखें दिखने लगती हैं, फिर फीट और विंग्स दिखने लगते हैं, और फिर उसके बाद बेबी हैच आउट करता है और उसमें से चिक बाहर निकलता है और चिक आगे डेवलप होकर हैन बनता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ अ हैन. If you have any doubt in this, you can ask me in the class. Thank you so much.